हास्य ना मारो फोन फोटो चालू करो। जय जिनेंद्र पंडित जी सर। जय जिनेंद्र। हाँ अरु कषाय योग संज्ञ संज्ञ है, ये विविध भेद जो जीव में जीव के अनन्य ही भाव है। अरुवे ही ज्ञाना
वन आदिक कर्म के कारण बने, उनका भी कारण जीव बने, जो राग द्वेष आदिक करे। आश्रव नहीं, नहीं बंद आश्रव नहीं बांध जाने की पूर्व निबद्ध जो सत्तावेश बंधक कहा, रागादि से प्रविमुक्त ज्ञायक मात्र बंधक नहीं रहा। फल पक्व खीरता व्रंत संबंध फिर पाता नहीं, क्यों कर्म भाव गिरा पुनः जीव में उदय पाता नहीं। जो सर्वपूर्व ज्ञानी के वे पिंड समान है, कर्म शरीर निबद्ध से। बंधक नाही है। सही से बंधकता चारित्र दर्शन ज्ञानहीन जो उससे ही ज्ञानी विविध उद्गल कर्म से बंधात जो सर्वपूर्व निबद्ध प्रत्यय वर्तते दृष्टि के योग के प्रायोग्य बंधन कर्म भावों से करे। उपभोग्य जिस विध होए उस विध बांधते ज्ञानावरण इत्यादि कर्म जो सप्त अष्ट प्रकार के विषय वे निरुपभोग्य ही बालिका जो
पुरुष को उपभोग्य बनते वे ही बांधे तो बना जो पुरुष को। सम्यक संयुत जीवन बंधक कहे, आश्वभाव अभाव में प्रत्यय नहीं बंधक कहे। नहीं राग द्वेष न मोह ये आश्रव नहीं सद्दृष्टि के, इससे ही आश्रव भाव बिन प्रत्यय नहीं के बने। चतुर्विध कर्म अष्ट प्रकार का कारण कहा, उनका ही रागादिक कहा, रागादि नहीं बंधना। जन से ग्रहित आहार जो उदराग्नि के संयोग से, भेद मांस वसा अरु रुधिरादि भावों परिणमे। शुद्ध नय परिच्युत बने। त्यों ज्ञानी के भी कर्म जो जीव शुद्ध नय परिच्युत बने। बहुवेद माने कर्म जो जीव शुद्ध नय परिच्युत बने। बहुवेद माने कर्म जो जीव शुद्ध नय परिच्युत बने।
नमो लोये सौहरिहन्ताणं नमो लोये सौहृदानं नमो लोये सौआयर्यां नमो लोये सौजायां नमो लोये सौत्रिकावती सावनम् ओंकारमिन्दु संयुक्त नित्यं जायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं च ओंकाराय नमो नमः मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो मंगलम कुंकुंडारी भुजेन्द्रम सुमंगलम नमः समरिस्मराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्स्वाय भवाय सर्वा विभाव नियुक्त निराकार नमस्कार विश्व सत्य के मम भाव नदिग सर्गा इनमें दक्षिण मार्चन के Mungkin sebenarnya akan menuti sebenarnya semua macam orang sulit ceritakan akan sulit anand sabjina sangrahanal anantana दृष्टि थी ये अनूठी है ये दृष्टि संसार में क्या अंत है नेति क्रिया से दयादान एनीथिंग महिमान शुभाव अनंत बार प्रयोग करे कोई महिमान महिमान महात्म चमत्कार प्रभु चैतन्य चमत्कारी वस्तु है पुरुषों से एनो जेने अनुभव थयो છે એનું જેને જ્ઞાન થઈ નહીં પ્રતીતિ થઈ છે એના માટે મને
એને આશ્રમને બંધ છે. અનંત સંસારનું કારણ એવું આશ્રમને બંધ એને અર્થ છે. એના મંત્રી મહાત્માનો મંત્રી બન્યો સંયોગ દ્રષ્ટિને જ્ઞાની કહેવામાં આવે છે. ભાવાર્થનો બીજો ભાગ, બીજો કાર્ય. સંયોગ દ્રષ્ટિને જ્ઞાની કહેવામાં આવે. કેટલાક એમ કે છે કે જ્ઞાની તો હાથ નથી હોય, વિતરાગ સમય હોય ચારે, વિતરાગ દ્રષ્ટિ ચારે હોય, નીચે સંબંધ દ્રષ્ટિની સહજ દ્રષ્ટિ એમ છે. પહેલે દરજ્જાના ભગવાન પૂર્ણ સ્વરૂપ બહારથી સર્વથા પ્રકારે ઉકેલ સમાસ એવી નથી. અંતર્મુખમાં પરંતુ મારી દ્રષ્ટિએ એ કઈ ઓછી વાત નથી. બહારના લક્ષ્ય તો ભરત અને તપ ને ભક્તિ ને પૂજા મંદિરો બનાવ્યા, બધું અનુપાર છે, ગજરસ થઈ છે. એમાં કઈ કોઈ ભાવનો અંત નથી. ભાવના અંતમાં કરનારને જ્ઞાની કહેવામાં આવે છે. તે યોગ્ય છે, તે જાળવી છે. શાસ્ત્રનો આપણે ભણવા માટે જ્ઞાની એમ નથી. જ્ઞાન સ્વરૂપી પ્રભુ જાણ સ્વભાવનો પિંડ વિનાયક, તેનું જ્ઞાન તેને જ્ઞાન કહે છે. બીજી આવડત ઓછી હોય છે, સમજાવતા ન પણ આવડે. જેથી કરીને જ્ઞાન અજ્ઞાન થતું નથી. અને અગિયારનું જ્ઞાન થતા એ અજ્ઞાન છે તે કઈ જ્ઞાન થતું નથી. ચૈતન્ય મહાપ્રભુ એનું જેને જ્ઞાન થયું, એને જેને જ્ઞાનમાં જ્ઞેય બનાવી, અનાદિથી પરને જ્ઞેય બનાવીને પર્યાય ત્યાં રોકાણી છે. એ પર્યાયને સ્વસ્વરૂપમાં જ્ઞેય બનાવી પર્યાયમાં જ્યાં સંયમ દર્શન પૂર્વક સંયમ જ્ઞાન શું છે, તેથી તેને જ્ઞાની સેવામાં યોગ્ય છે. ભલે તે હોય ભૂંડ. ઊંડો હોય કે ખોલ્યો હોય, ભગવાન આત્મા પૂરણ પ્રભુ ત્યાં તો એને પડ્યો છે. એનું જેને અંતરમાં સન્મુખ થઈને સંયોગનું લક્ષ છોડી, નિમિત્તનું છોડી, રાગનું છોડી, પર્યાય નહીં છોડી, પર્યાયનું લક્ષ છોડીને પર્યાય રહીને
અવલંબે છે, કહેશે કે એને જ્ઞાની કેવો રીઝાવી જ્ઞાની શબ્દ મુખ્યપણે 3 અપેક્ષાઓ વપરાય છે. પ્રથમ તો જેને જ્ઞાન હોય તે જ્ઞાની કહેવાય. આમ સામાન્ય જ્ઞાનની અપેક્ષા સૌ જ્ઞાન ત્યાં કશું કહે છે. બધા જીવને જ્ઞાન સ્વરૂપ છે એ અપેક્ષા જ્ઞાની કહેવાય. પણ એ કઈ સમ્યક જ્ઞાન ને મિથ્યા જ્ઞાન ને સમજના નથી. જ્ઞાન જીવ આત્મા જ્ઞાનનો ધરનાર, પૂર્ણ જ્ઞાનનો ધરનાર, એકલો વિનાયક ભાવ, એથી બધાને જ્ઞાની કહેવાય. સમ્યક મિથ્યા જ્ઞાની આની પહેલી સામાન્ય. આમ સામાન્ય જ્ઞાનની અપેક્ષા સર્વજો જ્ઞાની છે. અભિવી પણ જ્ઞાની છે. કેમ કે સ્વભાવ જ્ઞાન સ્વરૂપ છે ને, જ્ઞાન સ્વભાવ ભાવથી ભરેલો ભગવાન, એને લઈને બધાને જ્ઞાની કહેવાય. પણ એથી એ ભવના અંતનું કામ છે એ નહીં. ત્યાં સમ્યક જ્ઞાન અને મિથ્યા જ્ઞાન અપેક્ષા લેવામાં આવે છે. આ જે કીધું છે તો સમ્યક જ્ઞાન અને મિથ્યા જ્ઞાન એની અપેક્ષા જ્ઞાન લેવામાં આવે છે. તો સમ્યક દ્રષ્ટિને સમ્યક જ્ઞાન હોવાથી વાદથી ભીન પડી સ્વરૂપનું જ્ઞાન સમ્યક દ્રષ્ટિ ભેદ જ્ઞાન હોવાથી સમ્યક દ્રષ્ટિને સમ્યક જ્ઞાન હોવાથી તે અપેક્ષાએ તે જ્ઞાની છે. તે અપેક્ષા તેના જ્ઞાની છે. મોટા મોટા છે. ખરેખર જ્ઞાની નિર્વિકલ્પ દ્રષ્ટિ થાય સાથે ત્યારે સમ્યક દર્શન નિર્વિકલ્પ થાય. જ્ઞાન સાગરેલું નિર્વિકલ્પ જ્યાં સુધી પૂર્ણ થાય નિર્વિકલ્પ સમજ ત્યાં સુધી એને જ્ઞાન નહીં એમ કે પંડિતનું કથન છે ને, પંડિતનું કથન પાઠમાં બોલ્યા છે 144 ગાથા. સ્વરૂપની પ્રાપ્તિ કરે તેને સમ્યક દર્શન ને સમજ જ્ઞાન પાડે. ત્યાં કીધું ચારિત્ર લીધું નથી. પાઠ છે એવા તો ઘણા પાઠ છે. કુંકુંબા પોતાનો આશ્રય આપશે. સમ્યક જ્ઞાન સમ્યક દ્રષ્ટિ ન હોવાથી તે અપેક્ષા તો એને જ્ઞાની અને મિથ્યા દ્રષ્ટિના જ્ઞાન. સંપૂર્ણ જ્ઞાન ને પૂર્ણ જ્ઞાનની અપેક્ષા લઈએ. સંપૂર્ણ જ્ઞાન ને અપૂર્ણ જ્ઞાનની અપેક્ષા લઈએ તો કેવળ ભગવાન જ્ઞાની છે. 12મા ગુણસ્થાન સુધી હજી પૂર્ણ જ્ઞાન નથી. અને સદમસ્ત અજ્ઞાની છે. અજ્ઞાની છે તો પૂર્ણ જ્ઞાન નથી. સદમસ્ત છે. સદમસ્ત આવરણમાં છે. ભાવ આવરણમાં જે હયો છે એથી એને અજ્ઞાની કહેવામાં આવે છે. 12મા ગુણસ્થાન સુધી એ જ્ઞાનની પૂર્ણતાના અપેક્ષાએ અને પૂર્ણતાના અભાવની અપેક્ષા અજ્ઞાની કહેવાય. સમ્યક જ્ઞાન સમ્યક જ્ઞાની નથી એમ નહીં.
પૂર્ણ જ્ઞાનના અભાવે અને અજ્ઞાની, પૂર્ણ જ્ઞાનનો અભાવ તેથી અજ્ઞાની એટલું કહ્યું. મિથ્યા જ્ઞાન ને મિથ્યા દર્શન એ નહીં. કારણ કે સિદ્ધાંતમાં 5 ભાવોનું કથન કરતા શાસ્ત્રમાં 5 ભાવોનું જ્યાં કથન છે, પંચમ ભાવ પૂર્વક 4 ભાવ કર્યા એના. વિકારી પંચમ ભાવ ભગવાન એનો ભાવ અને 4 પર્યાયના ભાવ, 5 ભાવનું જ્યાં કથન છે ત્યાં 12મા ગુણ સ્થાન સુધી અજ્ઞાન ભાવ કયો છે? વિતરાગ થયો છે. અંતર્મૂળ પછી કેવું જ્ઞાન થવાનું છે? પણ પૂર્ણ જ્ઞાનના અભાવની અપેક્ષા એ 12મો ગુણ સ્થાન વિતરાગી તેને પણ અજ્ઞાની કહે છે. અજ્ઞાની એટલે મિથ્યા જ્ઞાની એમ નહીં, પૂર્ણ જ્ઞાનનો અભાવ એટલી અપેક્ષા અજ્ઞાની. આ પ્રમાણે અનેકાંતથી અપેક્ષાથી જો આ અનેકાંત સંયમ દ્રષ્ટિને જ્ઞાની કહો એ વસ્તુના સ્વરૂપના ભાનની અપેક્ષા. મિથ્યા દ્રષ્ટિને અજ્ઞાની કહો એ સ્વરૂપના અજ્ઞાન. 12મા ગુણ સ્થાને જ્ઞાન કહ્યો એ પૂર્ણ જ્ઞાનના અભાવને. એક જ અપેક્ષા લે કે જ્ઞાન જેવું મિથ્યા દ્રષ્ટિ અજ્ઞાની છે તેવો જ 12મા ગુણ સ્થાન અજ્ઞાની છે એમ નથી. આ પ્રમાણે અનેકાંતથી અપેક્ષાવળી વિધિ વિશે નિર્બાધપણે સિદ્ધ થાય. વિધિ નિષેધ સંદર્ભ દ્રષ્ટિમાં જ્ઞાન છે, 12મા ગુણ સ્થાને અજ્ઞાન છે, સંપૂર્ણ નથી. એ રીતે વિધિ નિષેધથી વાત અનેકાંતથી સાબિત થાય છે. સરખા એકાંતથી કાંઈ પણ સ્થિર થતું નથી. સરખા એકાંત કરવા જાય તો કોઈ વાત સ્થિર નહીં થાય. એનો અર્થ એવો નથી કે અનેકાંત એટલે નિમિત્તથી પણ થાય ને પદાંતથી પણ થાય, વ્યવહારથી પણ થાય નથી. એ અનેકાંત નથી. એ અનેકાંત છે નિશ્ચયથી થાય ને વ્યવહારથી ન થાય, ઉપાદાનથી થાય ને અનિથી ન થાય. એ ત્યાં અનેકાંત. આ અનેકાંત તો અપેક્ષિત સંયમ જ્ઞાન અને પૂર્ણતાના ભાવની અપેક્ષા જ્ઞાન, અને અહીંયા નીચે મિથ્યા દ્રષ્ટિની અપેક્ષા જ્ઞાન. એ અપેક્ષા વાંચેલ છે. હવે જ્ઞાનનો બંધ થતો નથી એ શુદ્ધનો માધ્યમ છે. જોયું શુદ્ધ ભગવાન પૂર્ણ શુદ્ધ સ્વરૂપ પૂર્ણાનંદમય નાથ આનંદ ગુણનો સાગર દરિયો પવિત્ર પ્રભુ એકલો પવિત્રતા પિંડ પ્રભુ ચૈતન્ય પ્રતિમા એકલી પવિત્રતાના જ્ઞાનની પ્રતિમા પ્રભુ. એને જો લઈએ તો એનું મહત્વ છે ત્યાં શુદ્ધમય મહિમાનું કાર્ય કરે છે. એ શુદ્ધ મહિનો જ્ઞાનીને બંધ થતો નથી. એ શુદ્ધમયનું મહત્વ છે. શુદ્ધને એટલે નિર્વિકલ્પ આનંદના અનુભવનું એ મહત્વ છે. પૂર્ણ સ્વરૂપનો અનુભવ અને પ્રતીતિ એનું મહત્વ છે. જ્ઞાનીને બંધ થતો નથી એમાં શુદ્ધમયનું મહત્વ છે.
निर्विकल्प शुद्ध चैतन्य भगवान જ્યાં સમાધિમાં અંદર શાંતિમાં પીડ્યો છે તે સૂર્યમયનું માચન કરે, માટે સૂર્યમયનું મહિમાનું કાર્ય કરે છે. જ્યાં સૂર્યમયમ દત્ત બોધકનો કિમમ એકાગ્રમૈવ કલયતિ સદૈવ હેતુ રાગાદિનોત્તમાન સતતમ બહન પ્રસંતિ દંડ વિધુરમ સમયસ્ત સારમ. ઉદ્ધત બોધ કિમ શુદ્ધમયમ અજ્ઞાત ઉદ્ધત જ્ઞાન. જ્ઞાન જે આત્માનું કહેવું એ જ્ઞાન ઉદ્ધત થઈ ગયું, કોઈને ગમતું નથી. કર્મના ઉદયને ગમતું નથી, શાસ્ત્રના પાના વાંચવું તો જ્ઞાન થાય એને ગમતું નથી, એવું ઉદ્ધત જ્ઞાન થાય. ઉદ્ધત જ્ઞાન કોઈનું હૃદયનું દબાયું એવું ઉન્નત જ્ઞાન. ભગવાન જ્ઞાન સ્વરૂપી ધ્રુવ ચૈતન ચંદ્ર અંદર બિરાજે, શાંતિનો સાગર. જ્ઞાન ને એની સાથે શાંતિ ને એની સાથે આનંદ, એવું જે ભગવાન નિર્વિકલ્પ વસ્તુ તેને અહીં શુદ્ધ નહીં કીધી છે. એ શુદ્ધ નહીં જ્ઞાન છે આત્માનું ઉદ્ધત જ્ઞાન છે. કોઈનું દબાય નહીં. એ કર્મના ઉદયના જોરમાં દબાય નહીં. અથવા વિશેષ વિદ્વતા અને પંડિતા ન હોય, તેથી જ્ઞાન એમ માને કે અરે મને જ્ઞાન નથી, એનું એ નથી. એ ઉદ્ધત જ્ઞાન છે. ઘણા જ્ઞાનમાં બહારમાં નિપુણ દેખાય, તેથી પોતાને એમ ન થઈ જાય કે અરે આ મને તો કાંતો જ્ઞાન બહુ ઓછું. એ ઉદ્ધત જ્ઞાન કોઈને ગમતું નથી. વિષય જાણવાળાઓને પણ જ્ઞાની છે એમ એ ગમતું નથી. અને હું ઓછું જાણું છું માટે તો હું નહીં, એમ એ જ્ઞાન ઉદ્ધત થઈ ગયું છે. એવું સમ્યક દર્શનની મહાત્મા, સમ્યક જ્ઞાનનો મહાત્મા. ભગવાન આત્માનું દર્શન ને આત્માનું જ્ઞાન એટલે શું? જેને ભગવાનના ભેટા થયા આ ભગવાન પોતે છે. એનું જે જ્ઞાન છે તે જ્ઞાની છે ને તે જ્ઞાન ઉદ્ધત થઈ ગયું છે. કે હું શાસ્ત્ર વાંચું તો મને જ્ઞાન થાય એવું પણ એને જ્ઞાન મને થાય, એટલું જ્ઞાન ઉદ્ધત થઈ ગયું. નિજ ખાણમાંથી જ્ઞાન આવ્યું. એમાં અનંત જ્ઞાન ભર્યું છે જેનો પાર નથી, એવો ભગવાન સ્વભાવ. એમાંથી જ્ઞાન આવ્યું. એ જ્ઞાન બીજાના વિશેષ જ્ઞાન દીખીને હું છું એમ નથી લખાતો, એમ દબાઈ નથી જતું. અને કેવળ જ્ઞાની ને દેખીને એમ એને થતું નથી કે કેવળ જ્ઞાની છે પૂરું જ્ઞાન.
ये अपेक्षा तो हूँ अभिनंदन कहूँ ना ज्ञानी समझा कैसा है। हाँ स्वदृढ़ आश्रय भगवान जागीने उठो ये ज्ञान जगत में कोई चीज नहीं दबातो नहीं એટલે કે કોઈ તે ગમતું નથી। એ જ્ઞાન ભગવાન થી પણ મને જ્ઞાન છે તેને જ્ઞાન ગમતું નથી। જ્ઞાન અદ્ભુત અદ્ભુત જ્ઞાન કોઈનું દબાવ્યું નહીં એવું ન જ્ઞાન એવું એનું જ્ઞાન છે। જેની સાથે અતિન્દ્રિય આનંદના નમૂના એવા સ્વાદમાં એ જ્ઞાન કોઈથી દબાવ્યું તો નથી। જેવો સદા એવા શુદ્ધ નહીં જેનું લક્ષણ એવા શુદ્ધ નહીંના રહીને શુદ્ધ નહીંનો આશ્રય કરીને એટલે પૂનમ નિર્વિકલ્પ વસ્તુ છું તેનો આશ્રય કરીને જે થઈ દશા જેવો સદા એકાગ્રપણાનો જ અભ્યાસ કરે છે એટલે જ આનંદને જ્ઞાન થયું એવું જે સ્વભાવ તેમાં એકાગ્રતાનો અભ્યાસ કરવા એ શાસ્ત્રનો અભ્યાસ કરે છે તે એ પાયું નહીં વસ્તુ કમાયું નહીં અનુભૂતિ થતા શાસ્ત્ર ભણવાની અટક નથી પરિસ્થિતિમાં ભણે આવે પણ ત્યાં એમ નથી કે હું ભણું તો મારું જ્ઞાન રહી જાય નહીતર જ્ઞાન નહીં રહે। ભગવાન ચૈતન્ય સવા પૂર્ણ પ્રભુ એ જે અનંત કાળમાં હાથ મોટો આવ્યો એ જ્ઞાન પૂર્ણ બધે હોય અને બીજાને વિશેષ જ્ઞાન હોય। વિશેષના બે પ્રકાર જાણપણાનું વિશેષ ને પ્રગતિનું વિશેષ કેવું જ્ઞાન પણ એને એમ થતું નથી કે હું અજ્ઞાન છું કેવું જ્ઞાન છું। આવી વાત છે તો મુદ્દાના રકમની વાત છે। સદાય એકાગ્રપણાનો અભ્યાસ કરે એની એકાગ્રતા પ્રભુ ચૈતન્ય વિતરાગ મૂર્તિ પ્રભુ નિર્વિકલ્પ સમાધિનો એકાગ્રતાનો અભ્યાસ આ અભ્યાસ સર્વસંસારમાં કહ્યું ભાવ જ્ઞાનને લક્ષ્ય આ જેમ અભ્યાસ કરો તેનું શું અપેક્ષાથી જ્યાં વ્યવહાર આ તો પ્રભુ જ્યાં એકાગ્ર શું છે ત્યાં થાય છે। મહાદરિયો ભર્યો છે ભગવાન જેની પૂર્ણતાની આંગળમાં કોઈ અનંતા ગુણનો છેલ્લો આ ગુણ છે એટલા ગુણ ભયા છે જેનો છેલ્લો ગુણ છે એવા અનંતા ગુણ ભયા છે। શું કીધું આત્મામાં એટલા અનંતા ગુણ છે
त्यागी सिलो छेड़ा अनंत मैलो अनंत एवा ब्रह्मનું જ્ઞાન થયું, એવા પ્રભુનું જ્ઞાન થયું, એવા ભગવાનનું જ્ઞાન થયું. એ જ્ઞાન પોતામાં અભ્યાસ કરતા રહેતા. अभी हम सबने गुरुदेव श्री के प्रवचन समयसार ग्रंथराज के 120 नंबर करस्पॉन्ड के व्याख्यान का लाभ लिया है. थोड़ा सा पहले कभी आज विषय आया है और विशेष मुख्यतः तो आज 120 नंबर पर चर्चा हुई है. और आपने ध्यान दिया होगा कि ज्ञानी को बंध नहीं होता, शुद्ध नय का महात्म्य है. इसलिए शुद्ध नय की महिमा वाला यह काव्य समयसार कलशों में आत्मख्याति में आचार्य अमृतचंद स्वामी ने कहा है. गुरुदेव श्री का पूरा जीवन जिस शुद्ध नय के विषय को समझाने के लिए निकला हुआ है और गुरुदेव ने पूरे जीवन इस शुद्ध नय के विषय को ग्रहण करने का, उसको उपादेय बताने का, उसका आश्रय लेने की चर्चा की है. वह मूल बात, मूल चर्चा अभी हमने उनके मुकाबले से सुनी है. विषय अभी बहुत अच्छा और अभी आने वाला है. हमारे बीच उपस्थित है डॉक्टर शांति कुमार जी पाटिल, जयपुर से प्राचार्य हैं पंडित टोडरमल सिद्धांत महाविद्यालय के. उनका परिचय बाद में दूंगा. अभी कुछ सूचनाओं के पश्चात में हम उनका स्वाध्याय का लाभ प्राप्त करेंगे. अभी मैं आपको एक छोटा सा वीडियो दिखाने जा रहा हूँ. वह वीडियो है डॉक्टर उत्तम चंद जैन सिवनी वालों का. और यदि हमारे डॉक्टर विवेक जी छिंदवाड़ा वाले जुड़ गए हों इस समय, तो यदि वो अपना हैंड रेस करेंगे तो पता पड़ जाएगा हमको. हमारे आशीष जी जरा देख लें, डॉक्टर विवेक जैन छिंदवाड़ा से यदि जुड़े हों तो उनको आप स्पॉटलाइट पे लेके आएंगे. डॉक्टर उत्तम चंद जैन सिवनी अभी छिंदवाड़ा में रहे और विगत लगभग 1.5 वर्ष पूर्व उनका देहावसान हुआ. डॉक्टर उत्तम चंद जैन सिवनी इस देश के उन विद्वानों में शामिल थे जो विद्वान अपने प्रतिभा के लिए जैन दर्शन के सिद्धांतों के पालन के लिए दृढ़ता से जाने जाते थे. और उन्होंने जीवन भर सिद्धांतों को तोड़े बिना, सिद्धांतों समझौता किए बिना जैन शासन का भरपूर प्रचार प्रसार किया है. ऐसे छिंदवाड़ा के हमारे डॉक्टर उत्तम चंद जैन साहब सिवनी वाले हमारे बीच से विदा हुए. लेकिन उनके द्वारा किए गए कार्य, उनके द्वारा जो सेवाएं दी गई हमारे ट्रस्ट के, वो उपाध्यक्ष रहे. मैं चाहूंगा कि हम सब उनका एक स्मरण करें इस अवसर पर, क्योंकि इन सारी गतिविधियों में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा करता था, उनकी प्रेरणा रहा करती थी. मेरा निवेदन है हमारे होस्ट महोदय से कि वे उनका वीडियो प्ले करें प्लीज. हमको कछु भय नारे, हमको कछु भय नारे, जान लियो संसार. हमको कछु भय नारे, जान
आपने देखा होगा कितनी ताजगी के साथ जैन शासन की सेवा करते रहे। और जब वो यहाँ जबलपुर में आए थे अष्टानिका के अवसर पर, मैंने सभा के दौरान उनसे कहा था कि मैंने पंडित कैलाश चंद्र जी को नहीं देखा, बड़े बड़े विद्वानों को नहीं देखा, नाम सुना है कि ये लोग जैन शासन के प्रकांड विद्वान माने जाते हैं, हमने आपको देखा है, आपके रूप में हमें लगता है कि जैन शासन का कितना गंभीर और कितना शानदार है। जब कोई व्यक्ति उनसे कुछ शंका पूछता था, वे अपने पूरे संग्रह से 6000 पुस्तक का संग्रह उनके पास मौजूद था, जिनवाणी मौजूद थी, उन्होंने उनको एक सल्ले लग जाती थी कि इसको समाधान कैसे किया जाए। हर बात को आगम से पुष्ट करने का उनका एक अभिप्राय रहा करता था। उनके पुत्र डॉक्टर विवेक जी जैन, जो हमारे छिंदवाड़ा के हैं, जो वहाँ अभी विराजमान हैं, यदि वो हों तो उनके सामने आप लेकर आए। उनकी हमारे डॉक्टर पंडित की धर्मपत्नी भी साथ में मौजूद हैं। और साथ में आप देखेंगे पूरा परिवार आज भी जैन शासन की सेवा कर रहा है। डॉक्टर विवेक जी जो हैं निरंतर वे छिंदवाड़ा में रह करके प्रवचन करते हैं, क्लासेस पढ़ाते हैं, विधान कराते हैं, अपने व्यवसाय के साथ साथ बहुत तत्परता के साथ और उत्साह के साथ जैन शासन की सेवा कर रहे हैं। ऐसे और खास बात एक और बात जरूर कहना चाहूंगा कि अक्सर हमने सुना है कि लोगों का समाजीकरण हुआ करता है। सुना तो बहुत है लेकिन देखा बहुत कम है। अक्सर जिंदगी भर तत्व ज्ञान की बातें करते करते कहीं ऐसा ना हो तत्व ज्ञान अंत में काम ना आए, लेकिन पंडित साहब ने जो जीवन भर कहा उसे कर करके दिखाया और जीवन के अंत समय में पूरे होश के साथ, जागृति के साथ इस देह का त्याग किया। और उनका जीवन का जो अंतिम समय था वो आदर्श बन गया विद्वानों के लिए भी कि जिएंगे शान से और मरेंगे शान से, हमें कोई डर नहीं है। उन्होंने गीत चलाया अभी, हम तो कछु भय ना रे, उनको बहुत पसंद गीत था, इसलिए हमको शामिल किया है। हमारे डॉक्टर विवेक जैन छिंदवाड़ा से मौजूद हैं, मैं चाहूंगा सामने उनको लेकर आए। ला सकते सामने क्या? हाँ जी, उनका वीडियो ऑफ है और वो बटन भी, माइक भी ऑफ है उनका। माइक तो कोई दिक्कत नहीं, वीडियो चालू करें जरा विवेक जी आगे। हाँ, मैंने बोला उनको। हाँ, और हम तुरंत लाभ लेंगे डॉक्टर शांति कुमार जी पाटिल के स्वाध्याय का। आवाज आ रही मेरी? आवाज आ रही है? हाँ जी आ रही है। कोई बात नहीं, अभी सीधा शाम का समय बता रहा हूँ मैं आपको, शाम का प्रोग्राम बता रहा हूँ, वो सीधे स्वाध्याय का लाभ ले रहे हैं। शाम को आज 6:50 से, थोड़ा टाइम बदला हुआ है, आज शाम को 6:50 से 7 बजे तक आज होगा, भक्ति होगी, भजन होंगे। 7 बजे से, थोड़ा सा टाइम पीछे किया है, 7 बजे से 7:30 तक गुरुदेव श्री का व्याख्यान होगा, जो चल रहा है नियमित अपना समय साध गाथा नंबर 15 पर। 7:30 से 8 बजे तक, 7:30 से 7:45 तक चंद्रशेखर की यात्रा करेंगे, कुछ सूचना आपको देने वाले हैं। और विशेष बात हमने आपसे पहले भी कहा है, बहुत मंगलकारी सूचना आपको देने जा रहे हैं आज, आपको उसका शाम तक इंतजार करना होगा। 7:45 से 8:30 तक पंडित चेतन भाई जी मेहता के स्वाध्याय का लाभ प्राप्त होगा। और 8:30 से 9:30 बजे तक हमारे चारों विद्वानों की सन्निधि में शंका समाधान का कार्यक्रम संपन्न होगा। इस तरह आपको अवश्य इसका लाभ लें। अब मैं सीधे चल रहा हूँ जयपुर। हमारे प्राचार्य महोदय, हम जैसे 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, लगभग 600-700 विद्यार्थियों को इन्होंने अपने स्नेह में पाला है, तत्व ज्ञान पढ़ाया है। और हम जो आज जो कुछ भी सेवा कर पा रहे हैं, कोई हिचक नहीं है कहते हुए, इसमें हमारे आदरणीय गुरुवर शांति कुमार जी पाटिल का बहुत बड़ा योगदान है। वे पूरे जीवन भर से लगभग 40-50 सालों से वे जैन शासन की सेवा कर रहे हैं और जयपुर में प्राचार्य के पद पर रहते हुए हम जैसे कई छात्रों को पढ़ा करके जैन शासन की सेवा के लिए प्रेरणा देते रहते हैं। मैं उनको बुला रहा हूँ, पधारें और आप गुरुदेव श्री के स्वाध्याय के आधार पर चर्चा प्रारंभ करें। शांति कुमार जी पाटिल, जय जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। वंदितु सौव सिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गदिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुड नमो सुध केवली भणिदम्। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। अनंत धर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकान्तमयी मूर्तिर्
नित्यमेव प्रकाशताम्। बड़ा सौभाग्य है हमारा कि हमने उस काल उस समय में जन्म लिया है जिस समय हमें आध्यात्मिक सत्पुरुष पूज्य गुरुदेव श्री का समागम मिला है। जिस तरह से पानी कभी खराबी हो जाए और उस पानी से बीमारी आने लग जाए तो पानी छानकर पीने का निर्देश दिया जाता है, गवर्नमेंट की तरफ से भी दिया जाता है। हम तो जैनी है तो छानकर तो पीते ही हैं, और कोई विशेष बीमारी फैलने की संभावना होवे तो उबाल कर पीने के लिए कहा जाता है। और आजकल तो एक्वागार्ड आ गया, आरओ आ गया और पता नहीं कहाँ तक गए। और ये सभी पानी में जितने अनावश्यक बाधक तत्व है उन सबको दूर करके जो स्वास्थ्य के लिए अच्छी चीज है पानी में भी, वह हमारे सामने ला करके रखते हैं। ऐसा पानी पीने के बाद भी यदि कदाचित कोई अस्वस्थ हो जाए, कोई बीमार होने लग जाए, तो फिर समझ लेना चाहिए कि उसकी इम्यूनिटी निश्चित रूप से बहुत वीक है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ, सारे दर्शन, उन सारे दर्शनों में जैन दर्शन ने आत्म कल्याण की, आत्म की मूल बात पकड़ी जैन दर्शन जिनवाणी ने। और उस जिनवाणी में भी 4 अनुयोगों में से द्रव्यान योग में सीधे आत्महित की बात है। उस द्रव्यान योग में भी ग्रंथादिराज समय सार और ग्रंथादिराज समय सार की व्याख्या पूज्य गुरुदेव श्री करते हुए उसमें से जिस शुद्धात्मा के लक्ष्य से सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है, जिस शुद्धात्मा के लक्ष्य से हमारा सचमुच आत्महित हो सकता है, ऐसे दृष्टि के विषयभूत शुद्ध आत्मा को मानो हथेली पर निकाल कर हमारे सामने रख दिया हो। और ऐसी स्थिति में भी यदि हम उसका लक्ष्य करके अपना कल्याण नहीं कर पाए तो फिर हम ऐसा कह सकते हैं टोडरमल जी की भाषा में, दरिद्री को अवलोकन मात्र चिंतामणि रत्न मिले और वह अवलोकन न करे, कोड़ी को अमृतपान कराए और न करे तो उसके अभाग्य की महिमा हमसे नहीं कही जाती। ऐसा ही पूज्य गुरुदेव श्री के द्वारा प्रतिपादित तत्व ज्ञान हमारे सामने होते हुए भी यदि हम आत्महित और आत्म कल्याण के मार्ग पर नहीं लग पाए तो सचमुच हमारे जैसा अभागा कोई नहीं होगा। अभी हम चर्चा पूज्य गुरुदेव श्री की सुन रहे थे समय सार के आश्रव अधिकार के अंतिम प्रकरण पर। मुख्य रूप से 120वां कलश लेना है, लेकिन ये प्रवचन 177-78वीं गाथा के भावार्थ से आज का प्रवचन हमने सुना है। यहाँ विषय चल रहा है ज्ञानी को आश्रव बंद नहीं होता। क्यों नहीं होता है? अभी जो पिछले गाथाओं की जो चर्चा चल रही थी, जिसके भावार्थ पर अभी बात हो रही है, उसमें ये बात आई है क्योंकि सम्यक दृष्टि के राग द्वेष मोह का अभाव है। कौन सा सम्यक दृष्टि? चौथे गुणस्थानवर्ती सम्यक दृष्टि, उसके भी राग द्वेष मोह का अभाव है। और राग द्वेष मोह का अभाव होने के कारण से भले ही पुराने द्रव्य कर्म, द्रव्य प्रत्यय वो उदय में आ रहे हैं, लेकिन उनके उदय में आने पर भी नए आश्रय और बंध के लिए वे कारण नहीं बनते हैं। ऐसी क्या विशेषता है, क्या कारण है? और वही कहते हैं कि सम्यक दृष्टि के राग द्वेष मोह का अभाव है। टीका में तो ये वाक्य लिखा कि सम्यक दृष्टि और राग द्वेष मोह ये एक साथ रह नहीं सकते हैं। राग द्वेष मोह के अभाव के साथ सम्यक दृष्टि पने का अविनाभावी पना है। इसका अर्थ सम्यक दृष्टि हुआ तो राग द्वेष मोह का अभाव निश्चित रूप से हुआ। अब यहाँ निश्चित रूप से शंका खड़ी होती है, अभी तो चौथे गुणस्थान में है,
राग द्वेष मोह का अभाव कहाँ हुआ है। भावार्थ में उसी बात का स्पष्टीकरण पिछले पैराग्राफ में आ चुका है। आज दूसरे पैराग्राफ से चर्चा प्रारंभ हुई है। गुरुदेव ने काफी विस्तार से उस पर चर्चा की है। ये मिथ्यात्व संबंधी राग द्वेष मोह के अभाव की बात है। मिथ्यात्व संबंधी राग द्वेष मोह का अभाव है और उस कारण से सम्यक दृष्टि को आश्रव बंध नहीं होता का अर्थ अनंत संसार वाला आश्रव बंध नहीं होता। भूमिका अनुसार जितने मोह राग द्वेष अभी है उस संबंधी सामान्य बंध चल रहा है, लेकिन उस बंध को यहाँ गिना नहीं जाता है। समय सार में सर्वत्र इसी प्रकार की चर्चा निश्चित रूप से आई है। आज की चर्चा जो दूसरे पैराग्राफ से प्रारंभ हो रही है, भावार्थ के दूसरे पैराग्राफ से, और उस दूसरे पैराग्राफ की चर्चा ही यहाँ से प्रारंभ हुई है कि ज्ञानी को आश्रव बंध नहीं होता। क्यों नहीं होता है? और आज जो सारी फिर चर्चा विस्तार से गुरुदेव के प्रवचन में भी आई, उसमें ज्ञानी को नहीं होता है तो ज्ञानी किसको कहना, या ज्ञानी कह करके क्या लिया हुआ है, ज्ञानी किसे कहना है, और जिसे वो ज्ञानी कहा गया है ऐसे ज्ञानी बनते कैसे, ज्ञानी कैसे हुआ जाए, उसकी प्रक्रिया, उसका उपाय भी गुरुदेव श्री ने बताया। और ऐसे ज्ञानी शब्द का प्रयोग 3 अपेक्षाओं से आता है। ये बात जो भावार्थ में आई उस पर भी चर्चा गुरुदेव ने की है, और इसके बाद 120 नंबर की कलश की चर्चा आई है। पहले जो ये पिछले भावार्थ पर चर्चा आई उसी पर हम चर्चा करते हैं। ज्ञानी किसको लेना, ये बात भी गुरुदेव ने उठाई। बहुत से लोग कहते हैं कि ज्ञानी सम्यक दर्शन, सम्यक दृष्टि सात्विक गुणस्थान में मानते हैं। गुरुदेव कदाचित कभी कभी किसी पर पक्ष अपर पक्ष का नाम लेकर के भी बोले, बहुत विनय के साथ और यथार्थ वस्तु स्थिति बताने के लिए, किसी का खंडन करने के लिए नहीं, वस्तु स्वरूप बताने के लिए, आगम के आधार से 144वीं गाथा का आधार भी दिया। समय सार शुद्ध आत्मा को प्राप्त करने वाले उसे सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान नाम प्राप्त होता है। सम्यक चारित्र नाम नहीं, अभी सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान नाम प्राप्त होता है। इसका अर्थ उसका श्रद्धान करने वालों को सम्यक दृष्टि और ज्ञानी कहा जाता है। इसलिए यहाँ चौथे गुणस्थानवर्ती सम्यक दृष्टि को ज्ञानी कहा हुआ है। भव का अंत करने वाले को ज्ञानी कहा है। भव का अंत करने वाला, जिसने अनंत गुणों का संग्रहालय, अनंत शक्तियों का संग्रहालय, ऐसे अपने शुद्धात्मा को आश्रय में ले लिया है, उसके भव का अंत हो गया। अनंत द्रव्य का आश्रय किया तो निश्चित रूप से भव का अंत आ गया है। वो ज्ञानी अपनी उस शुद्ध आत्मा का, ज्ञान स्वरूप शुद्ध आत्मा का आश्रय करने के कारण से ज्ञानी है। 2 बातों पर गुरुदेव ने ध्यान दिलाया। बहुत शास्त्रों का अध्ययन किया हुआ इसलिए ज्ञानी कहना ऐसा नहीं है। एक तो ज्ञान की अपेक्षा से बात की और दूसरा क्रियाकांड की अपेक्षा से बात की। व्रत करे, उपवास करे, पूजा भक्ति करे, बहुत दान दे, मंदिर बनवाए, गजरत चलावे, शुभ भाव, ऐसे शुभ भाव अनंत बार किए, उससे भव का अंत आने वाला नहीं है। उसे ज्ञानी नहीं कहा गया है। इसे ज्ञानी कहा जिसने ज्ञायत स्वरूप शुद्ध आत्मा का आश्रय किया। आचार्य अंकलक देव का स्वरूप संबोधन नाम का परमानंद स्तोत्र भी है। स्वरूप संबोधन भी परमानंद स्तोत्र है। परमानंद स्तोत्र में बहुत सारे श्लोकों में पंडित किसको कहना, ज्ञानी पंडित किसको कहना, बहुत सुंदर श्लोक आए वहां पर। सदानंदमयम जीवम यो जानाति स पंडिता स सेवते निजात्मानं परमानंद कारणम। पंडित किसको कहना? सदानंदमयम जीवम, जो ज्ञान आनंद ऐसे अपने आत्मा का ही सेवन करते, अपने आत्मा का लक्ष्य करते हैं। स सेवते परमात्मानं निजान स सेवते निजात्मानं परमानंद कारणम। आनंद के लिए वे एक अपनी आत्मा का आश्रय करते हैं, अपनी आत्मा का सेवन करते हैं। ये व्रत उपवास क्रिया कांड ये बाहर के क्रियाओं में निश्चित रूप से नहीं उलझते हैं, उन्हें ज्ञानी कहना।
बहुत आगे चल करके बहुत सुंदर और श्लोक लिखे। पाषाणेषु यथा हेम, दुग्ध मध्ये यथा घृतम, तिल मध्ये यथा तैलम, देह मध्ये तथा शिवः, काष्ठ मध्ये यथा वह्नि, शक्ति रूपेण तिष्ठति, अयम आत्मा शरीरेषु यो जानाति स पंडितः। ये शक्ति रूप से इस देह रूपी देवालय में भगवान आत्मा विराजमान है, उसका जो लक्ष्य करे, उसका आश्रय करे, वो ज्ञानी है। और गुरुदेव श्री तो भगवान आत्मा की भंडार लगाते लगाते उसका आश्रय, उसका लक्ष्य करने की बारंबार प्रेरणा देते हैं। इसलिए इसका निर्णय करने वाले वास्तव में वो ज्ञानी हैं। ऐसे ज्ञानी कैसे बनते हैं? क्या ऐसे ज्ञानी बनने का ठेका अकेला बनियों ने लिया है? ये शास्त्र पढ़ने वालों ने लिया है? मनुष्य ने लिया है? गुरुदेव कहते लिया ऐसा नहीं है। चूहा हो, बिल्ली हो, गिलहरी हो, कोई भी पशु होवे, सबके अंदर पूर्ण आनंद का नाथ भगवान आत्मा विराजमान है। उसका लक्ष्य करे तो वह भी ज्ञानी बन सकता है, वह भी उसका आश्रय करके सम्यक दृष्टि ज्ञानी हो सकता है। लेकिन कैसे हो सकता है? क्या करना पड़ेगा? ऐसा होने के लिए क्या करना पड़ेगा? स्वसन्मुख होना। वर्तमान की हमारी पर्याय जो पर का लक्ष्य बना रही है, उस पर को छोड़कर, पर को ज्ञेय बना रही है, उसको छोड़ करके अपनी शुद्धात्मा का लक्ष्य करे, अपनी शुद्धात्मा का आश्रय करे। कैसे हो? अभी हम जो प्रवचन सुन रहे थे, अभी आप पीडीएफ भी देख रहे थे साथ साथ में, 449 पेज पर ये चर्चा बहुत सुंदर ली। 4 बातें ली गुरुदेव ने इसमें, बहुत सुंदर। संयोग का लक्ष्य छोड़कर, निमित्त का लक्ष्य छोड़कर, राग का लक्ष्य छोड़कर, पर्याय का लक्ष्य छोड़कर, पर्याय का भी लक्ष्य छोड़कर, जो पर्याय द्रव्य का आलंबन करती है, जिसकी पर्याय द्रव्य का आलंबन करती है, उसे ज्ञानी कहते हैं। 4 बातें। अंतर में स्वसन्मुख हो करके, अंतर में स्वसन्मुख हो करके। हम स्वसन्मुख क्यों नहीं हो पा रहे हैं? क्योंकि हमारा उपयोग निरंतर परगेयों को विषय बना रहा है। वो परगेयों को गुरुदेव ने यहाँ पर परगेयों को 4 भागों में विभाजित किया। सबसे पहला संयोग, स्त्री, पुत्र, कुटुंब, परिवार, और यहाँ तक कि हमारी देह, यहाँ तक सभी संयोग के अंतर्गत आएंगे। और इस संयोग का सबसे पहले लक्ष्य छोड़ना, माने देह और देह के बाहर का सारा संयोग, उनका लक्ष्य छोड़ना। फिर किसका लक्ष्य करना? कि आत्मा का लक्ष्य करना। लेकिन आत्मा का लक्ष्य करने के लिए हमें समझना तो पड़ेगा। कौन समझाएगा हमें? वो भगवान आत्मा। ये समझने के लिए हमें देव शास्त्र गुरु के समागम में आना पड़ेगा, गुरु से समझना पड़ेगा, जिनवानी से समझना पड़ेगा। जब हम इनका आश्रय करेंगे तो हमें राग उत्पन्न होगा। उस राग का भी लक्ष्य छोड़ना है। 2 तरह के राग के लक्ष्य की बात, क्योंकि दूसरा अगला तीसरी बात लिए निमित्त का लक्ष्य छोड़ करके। जिस देव शास्त्र गुरु, जो गुरु हमें समझा रहे हैं, वे उस समय समझाने में हमें निमित्त जरूर है, परंतु उनका भी लक्ष्य हमें छोड़ना पड़ेगा। उनका भी लक्ष्य छोड़ करके, और साथ में तीसरे प्रकार का राग, मुझे अपनी आत्मा को जानना है, अभी मुझे अपनी आत्मा को जानना है, इस तरह विकल्प चल रहा होगा तब भी वह राग है। जब तक विकल्प है तब तक राग है। ऐसी विकल्प की दशा भी चल रही है, उसका भी लक्ष्य छोड़ करके। और सबसे अंतिम बात, जो पर्याय जिसका आश्रय कर रही, द्रव्य का आश्रय करना है, उस पर्याय को अपने स्वयं का लक्ष्य छोड़ करके जब द्रव्य के सम्मुख होती है, मैं त्रिकाल अखंड अभेद एक द्रव्य स्वरूप ही हूँ, ऐसा लक्ष्य करती है, तब आत्मा का अनुभव और सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। और वही सम्यक दृष्टि वास्तव में ज्ञानी है। इस तरह की चर्चा
गुरुदेव श्री ने ली, साथ में एक तरह से ज्ञानी कैसे बनते इसकी भी चर्चा की, और ये स्पष्ट कहा ऐसा ज्ञानी चौथे गुण स्थान में होता है, और चौथे गुण स्थानवर्ती ज्ञानी की अपेक्षा से यहाँ चर्चा विस्तार से ली गई है, सभी पूरी चर्चा। फिर चर्चा आई ज्ञानी तीन प्रकार से, ज्ञानी की अपेक्षा, ज्ञानी की जो चर्चा की गई है तीन अपेक्षाओं से की गई। पहली अपेक्षा है सामान्य ज्ञान की अपेक्षा, दूसरा लिया है सम्यक ज्ञान की अपेक्षा, और तीसरा लिया है पूर्ण ज्ञान की अपेक्षा। इसका अर्थ ज्ञानी किसको कहना? पहली अपेक्षा, जिनमें ज्ञान पाया जाता है उनको ज्ञानी कहना। कौन सा ज्ञान? कौन से ज्ञान की बात नहीं, सामान्य ज्ञान। और इस अपेक्षा से सारे जीव मात्र वे सब ज्ञानी हैं, क्योंकि ज्ञान सहित है, इसलिए वो सब ज्ञानी हैं। इसमें मिथ्या दृष्टि आए, गुरुदेव ने याद किया कि अभव्य भी आए। अभव्य भी भगवान आत्मा है, पूर्ण आनंद का नाच है, परंतु भव का अंत नहीं कर सकेगा, अलग बात है। उसे भी यहाँ पर ज्ञानी कहा, क्योंकि ज्ञान सहित है, इस अपेक्षा से ज्ञानी। और जब ज्ञान सहित को ज्ञानी कहते हैं, बाकी जितने जड़ पदार्थ है, अचेतन पदार्थ है, अजीव पदार्थ है, वो अज्ञानी के अंतर्गत चले जाएंगे। दूसरी विवक्षाली सम्यक ज्ञान प्रकट होने की अपेक्षा से, सम्यक दर्शन के साथ सम्यक ज्ञान जिन्हें प्रकट हुआ है वे ज्ञानी, और मिथ्या दृष्टि वो अज्ञानी है। इस अपेक्षा से चौथे गुणस्थान से लेकर के आगे सभी ज्ञानी हैं। और तीसरी विवक्षाली पूर्ण ज्ञान की अपेक्षा, जिन्हें पूर्ण ज्ञान प्रकट हुआ हो वो ज्ञानी। इस अपेक्षा से मात्र वीतरागी सर्वज्ञ भगवान केवल ज्ञानी है, बस वो मात्र ज्ञानी है और बाकी सब अज्ञानी। उसी की चर्चा करते हुए, आगम के आधार से बात करते हुए गुरुदेव ने कहा कि जब 5 भावों की चर्चा चलती है, औदैहिक, औपशमिक, छायोपशमिक, पारिणामिक, इन 5 भावों की जब चर्चा चलती है, तब पंचम पारिणामिक भाव, उसकी अपेक्षा से बात करते हुए 12वें गुणस्थान तक अज्ञान भाव का, जब तक क्षायिक भाव प्रकट नहीं हुआ है, क्षोभशम भाव है और 12वें गुणस्थान तक है, उसकी अपेक्षा से 12वें गुणस्थान तक अज्ञानी है। अब ये बात कैसे घटित हो सकती है? मूल में जयचंद जी छाबड़ा जी ने भी भावार्थ में स्पष्ट किया, इसमें अनेकांतिक दृष्टिकोण है। कभी उसे ज्ञानी कहते हो, कभी उसे अज्ञानी कहते हो। ये कैसी बात है? ज्ञानी कहते हो, सम्यक की अपेक्षा से मिथ्या दृष्टि, फिर अज्ञानी कहते हो। जब 12वें गुणस्थान तक अज्ञान कहते हो, तब वो सारी ज्ञानी है, वो सब अज्ञानी में चले जाते हैं। तो ये ज्ञानी अज्ञानी ऐसा कैसे आपका बदलाव होता है? ये तो अनेकांत का दृष्टिकोण है। अनेकांत की अपेक्षा से ऐसा विधि निषेध संभव है, और इसीलिए गुरुदेव ने कहा जहां जहां जो जो एक छे तहां समझू ते, बराबर प्रकरण के अनुसार उसे समझ लेना चाहिए। या एक बात और गुरुदेव श्री ने विशेष ली, गुरुदेव श्री का अनेकांत घटित करने का एक अपना ही प्रयोजन की अपेक्षा से, वस्तु स्वरूप की अपेक्षा से कदाचित दूसरी तरह से अनेकांत घटित भी किया जाता हो, परंतु प्रयोजन की, अध्यात्म की दृष्टि से बात करें तो अनेकांत कैसे घटित करना? गुरुदेव ऐसा ही अनेकांत घटित करते थे। इसे एकांत से सिद्धि नहीं होती, बात बराबर है, इसलिए अनेकांत चाहिए। कार्य की सिद्धि कैसे होगी? हमारे प्रयोजन की सिद्धि कैसे होगी? कार्य की सिद्धि निमित्त से होती कि उपादान से होती है? अब अनेकांत आएगा तो यहाँ क्या आएगा? अनेकांत सारा जगत ये कहेगा निमित्त से भी होता है और उपादान से भी कार्य होता है, लेकिन गुरुदेव कहते हैं ये अनेकांत नहीं है, सही नहीं अनेकांत। हमारे प्रयोजन की सिद्धि निश्चय से होती है कि व्यवहार से होती है? सारा जगत ये कहेगा निश्चय से भी होती है, व्यवहार से भी होती है। और यदि आप ऐसा नहीं कहोगे, किसी एक से कहोगे, तो एकांत हो जाएगा, अनेकांत नहीं रहेगा। नहीं, गुरुदेव कहते ऐसा अनेकांत नहीं। वास्तविक अनेकांत है कार्य की सिद्धि उपादान से होती है, निमित्त से नहीं और किसी से नहीं। उपादान से होती है और निमित्त से नहीं, ये अनेकांत है। ऐसे ही हमारे प्रयोजन की सिद्धि निश्चय से होती है, व्यवहार से नहीं।
यहाँ कहेंगे तो कैसे, फिर दो नए तो लिया, एक नए को छोड़ दिया, निमित्त उपादान में से एक को छोड़ दिया, विधि निषेध। वास्तविक कार्य की सिद्धि किससे हो रही है? तो कार्य की सिद्धि की अस्थि उपादान से है, निमित्त से नहीं है, क्योंकि स्वयं उपादान कार्य रूप परिणमता है, निमित्त नहीं परिणमता। सम्यक्त की प्राप्ति शुद्ध नए के आश्रय से होती है। व्यवहारो भूदत्तो, भूदत्तो देशिदो शुद्धनो भूदत्त मस्सिदो खलु सम्मा इट्ठी अवधि जी। भूतार्थ के आश्रय से सम्यक्त की प्राप्ति होती है, शुद्ध नए के आश्रय से होती है, अन्य से नहीं होती है। इसलिए वहां इसी तरह का विधि निषेध लगेगा। अनेक जगहों पर गुरुदेव इस तरह के अनेकांत की भी सिद्धि करते हैं। इस तरह जो 177-78 के भावार्थ की चर्चा थी उसकी चर्चा पूर्ण होती है और अब 120वें कलश की चर्चा प्रारंभ होती है। ये सम्यक दृष्टि ज्ञानी को आश्रय बंद नहीं होता, क्या बात है, ऐसा ऐसी क्या विशेषता है? इसके लिए मूल में लिखा ये शुद्ध नए का महात्म्य है। ये शुद्ध नए का महात्म्य है जिस कारण से सम्यक दृष्टि ज्ञानी को आश्रयबंध नहीं होता है। वो शुद्ध नए की क्या महिमा है उसका ये कलश है। और चर्चा के लिए ये कलश लेने का परिणाम थोड़ा इसलिए भी था, कुछ ही इस तरह के कलश आए जिसमें समय सार की प्राप्ति कैसे होती इसकी बात की गई। और भी 1-2-3 कलश ऐसे हैं और इसमें ये बात लिखी गई है, पश्यन्ति समयस्य सारम, वे समय के सार को प्राप्त करते। कौन समय सार को प्राप्त करते, उसकी क्या विधि है समय के सार को प्राप्त करने की, उसकी भी चर्चा इस कलश में आई हुई है। उस दृष्टि से भी इस कलश को देखते हैं। कलश का पाठ अपन एक बार पुनः करते हैं, सामान्य अर्थ देखते हैं और फिर गुरुदेव ने जो विशेष बात इसमें से निकाली है, विशेष चर्चा ली है, उसकी भी अपन चर्चा करते हैं। अभी तो अधूरी है बात, अभी कल और इस पर चर्चा और आएगी, इसी कलश पर और विस्तार से चर्चा कल भी आने वाली है। यदि आपके सामने पीडीएफ हो या ग्रंथ हो तो 120 नंबर का कलश निकाले और पाठ करें। अध्यास्य शुद्ध नयमुद्धत बोध चिन्हम् एकाग्रमेव कलयन्ति सदैव येते रागादिमुक्त मनसः सततं भवन्तम् पश्यन्ति बंध विधुरम समयस्य सारम। या थोड़ी इस रूप में यदि बात कहे अंतिम चरण की, इस समय सार को कौन देखते हैं, कौन प्राप्त करते हैं? कि विधुर प्राप्त करते हैं। विधुर माने क्या, इसकी चर्चा गुरुदेव के उसमें कल आएगी। जब स्त्री का पति मर जाता है ऐसी स्त्री को विधवा कहते हैं। और जिस पुरुष का पति का वियोग, पत्नी का वियोग हुआ हो, ऐसे पुरुष को विधुर कहते हैं। अगर विधुरम समयस्य सारम पश्यन्ति, जो विधुर है वे समय सार को प्राप्त करते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? विधुर होना पड़ेगा जब समय का सार हमको मिलेगा। और विधुर होने के लिए पहले शादी करो, शादी करने के बाद में छोड़ने पर भी विधुर नहीं कहलाता है, जब वियोग होगा तो कहलाएगा। क्या तात्पर्य यहाँ विधुर का? विधुर शब्द से लिया, वास्तव में तो बंध विधुरम की बात है। बंध से रहित, बंध का बिल्कुल जिनके वियोग हो चुका है वे ही समय के सार को प्राप्त करते हैं। बंध विधुरम, वो बंध का अभाव किस आधार से कैसे होता है? अध्यास्य शुद्ध नय मुद्धत बोध चिन्हम, शुद्ध नय के आश्रय से, शुद्ध नय का आश्रय, पूरा समय सार शुद्ध नय के लिए समर्पित है। 11वीं गाथा 12वीं गाथा के भावार्थ में पंडित जयचंद जी छाबड़ा ने लिखा, जब वो मूल गाथा ही आती है, व्यवहारो भूदत्त, व्यवहार ने अभूतार्थ है, शुद्ध नय भूतार्थ है। और मूल टीका में लिखा सर्व ही व्यवहार अभूतार्थ है, जिसे गुरुदेव पुनः पुनः सगड़ो व्यवहार अभूतार्थ से, सारा व्यवहार अभूतार्थ है। उसके भावार्थ में बहुत मार्मिक बात लिखी पंडित जयचंद जी छाबड़ा ने, क्या आप सारे व्यवहारों का निषेध कर रहे हैं, क्या कारण है? अरे इस जीव को व्यवहार का पक्ष अनादिकाल से पड़ा हुआ है और बहुधा परस्पर जो उपदेश
चर्चा करते हैं वह भी व्यवहार की करते हैं, माने व्यवहार का उपदेश भी बहुत प्राप्त होता है, परंतु शुद्ध नय का उपदेश बहुत विरल है। और शुद्ध नय का आश्रय लेने पर उसका, वो व्यवहार का आश्रय तो का उसका फल तो संसार ही है, और शुद्ध नय का आश्रय लेते हैं इसका फल मोक्ष है। इसलिए श्री गुरु दयालु होकर के इस ग्रंथ में शुद्ध नय को मुख्य करके उपदेश देते हैं। अभी इसके तत्काल बाद ही 122 नंबर का कलश आने वाला है, उसमें तो लिखा, और उसका भावानुवाद करते हुए बनारस दास जी क्या लिखते हैं, इस ग्रंथ का निचोड़, इस ग्रंथ का सार क्या है, या निचोड़ इस ग्रंथ को, यह परम रस पोक तजे शुद्ध नय गहे, तजे शुद्ध नय बंध है गहे शुद्ध नय मोक्ष। यदि हमने शुद्ध नय को छोड़ दिया तो निश्चित रूप से बंधन ही है, संसार ही होने वाला है, और अभी तक हम संसार परिभ्रमण कर रहे हैं, इसका यही कारण है। कहे शुद्ध नय मोक्ष, एक शुद्ध नय का आश्रय करेंगे तो ही बंध से रहित हो सकेंगे। इसलिए अध्यास शुद्ध नयम, शुद्ध नय का आश्रय लेकर के, शुद्ध नय का आश्रय लिया, शुद्ध नय का आश्रय हुआ, ये कैसे समझना, कैसे पहचानने में आए। उद्धत बोध चिन्हम, उसका चिन्ह क्या है, ये शुद्ध नय, उसका लक्षण क्या, कि उद्धत बोध चिन्हम, उद्धत ज्ञान, जिसमें ज्ञान ही एकमात्र उद्धत हो रहा है, ज्ञान के अलावा और कुछ दृष्टि में नहीं रहा है। नहीं वो दिया पमत्तो न पमत्तो, जान को दुजो, एक ज्ञायक भाव, न ज्ञान है न दर्शन है न चारित्र, एक ज्ञायक भाव, तो एक ज्ञायक भाव, वो जहां उद्धत हो रहा है, वो उद्धत ज्ञान की चर्चा भी अभी गुरुदेव ने की, उसकी चर्चा भी करते हैं अपन। तो उद्धत बोध चिन्हम, वो जिसका लक्षण है वो शुद्ध नय, ऐसे ज्ञान मात्र ही जिसका लक्षण है, ऐसे शुद्ध नय का आश्रय लेकर के एकाग्रमेव कलयन्ति सदैव येते, एकाग्रता का अभ्यास करते हैं। इसकी चर्चा गुरुदेव के उसमें कल विशेष आएगी। गुरुदेव की शैली तो गजब की है, स्वाध्याय करना, शास्त्र पढ़ना या प्रवचन करना, ये भी वास्तव में गुरुदेव ने सिखाया, बोलने वालों को भी सुनने वालों को भी, सबको। शास्त्र लेकर के, शास्त्र की एक एक पंक्ति से हर एक का बराबर अर्थ करते हुए, भाव निकालते हुए ये चर्चा करना तो गुरुदेव ने सिखाया। और गुरुदेव बहुत लौकिक शिक्षा अल्प प्राप्त करते हुए भी संस्कृत में से अर्थ निकालते हैं, ये मूल संस्कृत में है, उस तरह से बोलते हुए कल आएगी उसकी चर्चा। और एकाग्रमेव किलन, जो एकाग्रता का अभ्यास करते हैं, अभ्यास पर भी जोर दिया, एकाग्रता का अभ्यास करते हैं। रागादि मुक्त मनसा सततम भवंता, वे रागादि से मुक्त मन वाले होते हुए, रागादि मुक्त मनसा सततम भवंता पश्यन्ति बंध विदुरम समयस्य सारम, वे बंध से रहित होते हैं। माने शुद्ध नय का आश्रय करने वालों को बंध नहीं होता, और वे समयस्य सारम पश्य, वे समय के सार को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए वास्तव में समय सार पढ़ने के लिए अभी हम थोड़ा समय सार के 3 अर्थ करते हैं। समय सार, समय माने मत, सिद्धांत, जितने जितने दर्शन चल रहे हैं, जितने धर्म चल रहे हैं, वे सब समय, और उसका सार है जैन धर्म, जैन दर्शन, जिनवाणी, जिनेन्द्र भगवान की वाणी, वो समय सार, क्योंकि उन सब में सारभूत जिनवाणी है। दूसरा समय सार ग्रंथादिराज समय सार, ये ग्रंथादिराज समय सार जो आचार्य कुंद कुंदेव द्वारा लिखा हुआ है। और तीसरा समय सार का अर्थ हम ले शुद्ध आत्मा, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म रहित, ऐसा जो शुद्ध आत्मा जिसे समय सार कहते हैं, ऐसा समय सार रूप शुद्ध आत्मा। इन तीनों को पढ़ना, समझना, ग्रहण करना है तो शुद्ध नहीं चाहिए। इसके बिना इनका हम प्रयोजन, इनका ग्रहण, इनका वास्तविक ग्रहण हम नहीं कर सकेंगे। हम जिनवाणी पढ़े और शुद्ध नहीं तक ना पहुंचे तो फिर हमने जिनवाणी नहीं पढ़ी, क्योंकि सारी जिनवाणी
अपनी शुद्धात्मा का निरूपण करने के लिए है। और यदि हमने वो शुद्ध नय को उसमें से नहीं ग्रहण किया तो सारी जनवानी पढ़ना निरर्थक है। समय सार पढ़ते हुए तो शुद्ध नय को मुख्य करना ही पड़ेगा। उसके बिना तो जहां ये कह रहे हैं प्रमत्त भी नहीं अप्रमत्त भी नहीं, न प्रमत्त न प्रमत्त, साथ में कह रहे कि ज्ञान दर्शन चारित्र भी नहीं है, व्यवहार से कहे जाते हैं। जब तक हम शुद्ध नय की दृष्टि मुख्य नहीं करेंगे तो हमें ग्रंथादिराज समय सार समझ में नहीं आ सकेगा। और जिस शुद्ध आत्मा का लक्ष्य करना है उसके लिए तो शुद्ध नय ही एकमात्र ग्रहण करने योग्य है। उसके बिना तो समय सार स्वरूप शुद्धात्मा हमारा लक्ष्य, हमारा विषय बन ही नहीं सकता है। इसलिए शुद्ध नय। गांधी जी का एक वाक्य आता है, साध्य की शुद्धि के लिए साधन की शुद्धि बहुत आवश्यक है। यदि साध्य की शुद्धि हमें करनी है तो साधन भी शुद्ध होना चाहिए। हम साध्य तो शुद्ध बनावे और साधन हमारा अशुद्ध होगा तो शुद्ध साध्य की प्राप्ति हमको नहीं हो सकेगी। शुद्ध आत्मा को प्राप्त करना है, शुद्ध आत्मा के लक्ष्य से निर्मल शुद्ध पर्याय प्रकट करनी है, और हम शुद्ध नय का आश्रय नहीं लेंगे तो प्रकट नहीं हो सकेगा। और शुद्ध आत्मा शुद्ध है, लेकिन वो शुद्ध आत्मा शुद्ध नय के बिना दिखाई नहीं देगा, आश्रय में नहीं आ सकेगा। एक व्यक्ति डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर से कहने लगा, डॉक्टर साहब मेरे पूरे शरीर में दर्द हो रहा है। डॉक्टर ने कहा बताओ भी कहाँ दर्द हो रहा है। डॉक्टर ने हाथ पकड़ा, दर्द हो रहा है, बोले नहीं हो रहा है। पैर हाथ लगाया, नहीं हो रहा है। पीठ पे हाथ लगाया, नहीं हो रहा है। डॉक्टर साहब आप हाथ लगाते तो नहीं होता है, मैं हाथ लगाता तो मुझे दर्द होता है, बताओ कैसे लगाते हो। उसने उंगली लगाई, हाथ लगाया, देखो साहब दर्द हो रहा है, यहाँ भी हो रहा है, यहाँ भी हो रहा है, यहाँ भी हो रहा है। डॉक्टर साहब ने कहा तुम उंगली बताओ अपनी। तो उंगली देखी तो तकलीफ कहाँ थी? उंगली में थी। तो जिस उंगली में पीड़ा है उस उंगली से जहां भी स्पर्श करोगे क्या समझ में आएगा, क्या ख्याल में? दर्द ही ख्याल में आने वाला है। ऐसा ही जिसका अभिप्राय, जिसका दृष्टिकोण अशुद्ध पड़ा हुआ होगा वो शुद्ध आत्मा का लक्ष्य कैसे करेगा, शुद्ध आत्मा का आश्रय कैसे करेगा? इसलिए नय पहले शुद्ध होना पड़ेगा, दृष्टिकोण पहले शुद्ध होना पड़ेगा, और ऐसे शुद्ध नय का आश्रय। अभी तो गुरुदेव तो उसमें शुद्ध नय का अर्थ तो शुद्ध नय माने शुद्ध नय का विषयभूत शुद्ध आत्मा, निर्विकल्प शुद्ध आत्मा, उसका आश्रय करने पर दूसरा उद्धत बोध चिन्हम, उद्धत बोध चिन्हम कह रहे हैं। 5 मिनट में चर्चा पूरी करते हैं। उद्धत शब्द की तरफ भी गुरुदेव ने लक्ष्य दिलाया। संस्कृत में उद्धत शब्द के 4 अर्थ किए। एक उन्नत, जिसको ऊंचा किया हुआ, दूसरा अतिशय, अत्यधिक, अत्यंत, ये दूसरा अर्थ किया। तीसरा अर्थ किया अभिमानी, और चौथा अर्थ किया अहंकारी, घमंडी। उद्धत बोध चिन्हम, गुरुदेव कहते हैं जिस शुद्ध नय से, जिसने शुद्ध नय का आश्रय लिया, जिसका लक्षण उद्धत ज्ञान है, ऊंचा किया हुआ, उन्नत किया हुआ, जो अतिशय है, अत्यंत है, जब ऐसा आश्रय लिया हुआ है वो अभिमानी, अहंकारी क्यों नहीं होगा, घमंड क्यों नहीं आएगा? और इसीलिए कहा किसी से नहीं दबता। वो ज्ञान उद्धत ऐसा हुआ है तो किसी से नहीं दबता है। 2 बातें ली, किसी से नहीं दबता है मैं। एक, कर्म के उदय से नहीं दबता, और दूसरा विशेष ज्ञानी, यहां तक कि केवल ज्ञानी हो उनसे भी नहीं दबता। नहीं दबता का मतलब, अरे कैसा कर्म का उदय आवे, परिस्थिति कैसी भी बने, कुछ भी होवे, ये मेरा कुछ बिगाड़ने वाला नहीं है। मैं तो एक शुद्ध आत्मा हूं। ये शुद्ध नय ने आश्रय किया हुआ है, ये शुद्ध नय ने लक्ष्य दिया हुआ है। ये उद्धत ज्ञान ऐसा उद्धत हुआ है। और दूसरा, यदि कदाचित क्षोभक्षम ज्ञान अल्प हो, और दूसरा विशेष ज्ञान, बहुत शास्त्र पढ़ने वाला होवे, यहां तक कि केवल ज्ञानी होवे और उनके सामने अपने को हीन गिने, ऐसा नहीं हो सकता है, यदि नहीं गिनता है तो अभिनय करता है। अभिनय की बात नहीं है, वो उसका जो सम्यक ज्ञान प्रकट हुआ है वो कह रहे ज्ञान की खान में से आया हुआ है, उसे दिख रहा है वो शुद्ध नय से। मैं कौन हूं
कि ज्ञान का घन पिंड, ज्ञान की खान, उसमें से मेरा ज्ञान प्रकट हुआ है। एक तरफ केवल ज्ञान और एक तरफ ज्ञान स्वरूप भगवान आत्मा, ये दोनों में से कौन श्रेष्ठ है? हम ऐसा कहे कि किसी को ये कहा जाए कि आप 1 ग्राम का छोटा सा 1 तोले का पारसमणि है और एक तरफ 1 टन सोना रखा हुआ है, दोनों में से चुनना है, लेना है आपको, आप कौन सा लेना पसंद करेंगे? बनिए तो बहुत होशियार होते हैं निर्णय करने में, क्या लेंगे? क्या लेंगे? 1 टन सोना है तो ना 1 टन सोना लेना चाहिए। ये तो थोड़ा सा 1 तोले का पारसमणि, इसका क्या काम का है? लेकिन बनिया होशियार होता है, वो 1 टन सोना नहीं लेने वाला है, वो 1 तोले का पारसमणि ले ले। क्यों लेगा? क्योंकि वो जानता है वो पारसमणि में ये ताकत है कि ऐसे 100 टन के सोने के कितने, अनंत की बात आई थी, गुण आत्मा में कितने गुण भरे हुए, अनंत 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 अनंत, कितने अनंत, ये अंतिम गुण है, ऐसा नहीं कह सकते, गिनती नहीं कर सकते हैं, ऐसे अनंत गुण, ऐसा अनंत गुणों का गोदाम, शक्तियों का संग्रहालय भगवान आत्मा, ज्ञान का घन पिंड, उस ज्ञान की खान में से ज्ञान प्रकट हुआ है। जब उस ज्ञान का घन पिंड हूं, मैंने उसका आश्रय किया है, तो फिर बुद्धत्व क्यों नहीं होगा, अभिमान क्यों नहीं, उसका अहंकार क्यों नहीं आएगा? इसलिए वह निश्चित रूप से किसी से दबता नहीं है। और इसके लिए एकाग्रता का अभ्यास, अब आश्रय पकड़ लिया शुद्ध आत्मा का, ज्ञान का, अब उसके एकाग्रता का अभ्यास, उसी में लीन होना, उसी में स्थिर होना। हमें तो नहीं आता है स्थिर होना। गुरुदेव ने कहा भैया 8 वर्ष की बालिका को भी सम्यक दर्शन के साथ सम्यक ज्ञान प्रकट हो जाता है, उसके भी एकाग्रता का अभ्यास प्रारंभ होता है, क्योंकि उस ज्ञान के साथ अतीन्द्रिय आनंद, निराकुल सुख, ये भी प्रकट हुए हैं, पुरुषार्थ भी उसके साथ प्रकट हुआ है, और वो आनंद आया है, वह सहज ही अपनी ओर खींचता है, इसलिए वो सहज एकाग्रता का अभ्यास करता है। चर्चा ये भी आई, तो फिर जिनवानी में तो शास्त्र का अभ्यास करने के लिए भी कहा हुआ है, ताते जिनवर कथित तत्व अभ्यास करीजे। प्रवचन सार में लिखा आगम का अभ्यास करना, तो अभ्यास नहीं करना क्या? ये शास्त्र आप समय सार पढ़ा रहे हैं, इसका अभ्यास करना कि नहीं करना? वो कहते आता है, इसके भी अभ्यास का परिणाम आता है, व्यवहार की बात है, लेकिन लक्ष्य उसका नहीं है। लक्ष्य अपने ज्ञान स्वरूप भगवान आत्मा का है। शुद्ध नय के माध्यम से उस भगवान आत्मा को जान करके उसका लक्ष्य करना, वो बुद्धत्व ज्ञान उसका चिन्ह है, और उसी में एकाग्रता का अभ्यास करना। अब रागादि मुक्त मनसा सततम भवन्ता, ये कैसे होते हैं? बंद विदुरम समयस्य सारम कैसे पश्यन्ति, इसकी चर्चा आगे के उसमें आएगी, वो अपन कल करेंगे। हम शुद्ध नय से शुद्ध आत्मा का आश्रय करते हुए उसी में एकाग्र होने का प्रयास करें, और हम भी समय सार को प्राप्त करें, इसी मंगल भावना के साथ। जय जय। चलो चर्चा चलेगी। विराग जी, विराग जी भाई साहब, जीतू भाई आप क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करें। स्टार्ट कर दो। आगे विराग जी, आगे एक मिनट। चलिए, मेरे पास नहीं है। फिर भी एक बार देखना हो क्या? हाँ, मेरे साइट में उस पे रखा हुआ है, एक पुराना भी और नया दोनों है। वो तो नया वाला ले लिया मैंने। अच्छा, उसमें नहीं है ना, उसमें पद। ध्यान दीजिएगा, हम प्रश्नोत्तर का कार्यक्रम प्रारंभ कर रहे हैं। जितेंद्र जी शास्त्री जी हमारे जुड़े हुए हैं, प्रश्नोत्तर का कार्यक्रम करेंगे, और उसके पहले हम चल रहे हैं छिंदवाड़ा।
डॉक्टर विवेक जी जैन हमारे मित्र हैं और डॉक्टर उत्तम जी साहब के सुपुत्र हैं। हम उनसे 2 मिनट मुलाकात कर लें, क्योंकि हमने उनसे पहले ही आग्रह किया हुआ था कि हम चाहेंगे समाज आपसे परिचित हो और आपसे हाँ, आप देख रहे हैं सभी समाज के जो जन बैठे हुए हैं, हमारे डॉक्टर विवेक जी बैठे हुए हैं और उनकी माताश्री बैठी हुई हैं, अरण्य परिषद धर्म पत्नी। डॉक्टर विवेक जी इस समय छिंदवाड़ा में निवास करते हैं। न केवल अपने व्यवसाय के साथ बल्कि वो सैकड़ों काम ऐसे कर रहे हैं तत्व ज्ञान के प्रचार प्रसार के अपने स्तर पर बहुत सराहनीय काम कर रहे हैं और उनकी पूरी ऊर्जा, उनका पूरा उपयोग जैन शासन के प्रचार प्रसार में जा रहा है। इस समय वर्तमान समय में जब सारा देश दुखी है अथवा बंद है, छिंदवाड़ा के स्तर पर भी अपने लेवल पर स्थानीय देवी पूजन विधान और स्वाध्याय के माध्यम से वे जिनवाणी को प्रचारित कर रहे हैं और खास तौर पर युवाओं के लिए विशेष कक्षाओं का आयोजन करते रहते हैं। और छिंदवाड़ा में भी वे युवाओं के चहेते विद्वान के रूप में ख्यात है और जब जब अवसर मिलता है बाहर जाकर के भी जैन शासन के प्रचार प्रसार संलग्न है। मैं ऐसे योग्य विद्वान के योग्य पुत्र का हार्दिक स्वागत करता हूं और आपको जानकर खुशी होगी, बहुत जल्दी है जो हम कार्यक्रम करने वाले हैं उसमें हमें विवेक जी के स्वाध्याय का लाभ प्राप्त होगा। आप पधारे, हमारे साथ में जुड़े। डॉक्टर विवेक जी, मम्मी जी जुड़ी हमारे साथ जुड़ी हैं, आपका बहुत बहुत आभार है। आपके पिता का पूरा देश ऋणी है क्योंकि उन्होंने जो काम किया है जैन शासन के प्रचार प्रसार का अतुलनीय है, अविस्मरणीय है और पूरा समाज हमेशा आपको याद रखेगा, उनके पिताश्री को याद रखेगा। वापस चल रहे हैं हम जितेंद्र जी के पास चल रहे हैं। प्रश्न मंच के लिए समय थोड़ा ज्यादा हो रहा है। जितेंद्र कुमार जी साहब पधारे और प्रश्न मंच प्रारंभ करें। जय जिनेंद्र सभी को। आवाज आ रही है मेरी जिग्नेश भाई? आ रही है आवाज। हाँ, चलिए मैं ज्यादा औपचारिकता न करते हुए सीधे प्रश्न मंच के ऊपर आता हूँ। बहुत ही शुद्ध नई की प्रेरणा देने वाली अद्भुत गाथा और श्लोक, उसके आधार से यहाँ पे चर्चा हुई। सबसे पहला प्रश्न है, ज्ञानी शब्द मुख्यतया 3 अपेक्षाओं को लेकर प्रयुक्त होता है, वो 3 अपेक्षाएं कौन सी है वो आपको बतानी है। चिंतन मोदी जी बोलिए। ज्ञान की अपेक्षा, जिसमें ज्ञान पाए जाते हैं वो सामान्य ज्ञान की अपेक्षा। दूसरा सम्यक ज्ञान की अपेक्षा, जहाँ सम्यक दर्शन के साथ प्रकट होने वाला ज्ञान है। और तीसरा पूर्ण ज्ञान की अपेक्षा, जिन्हें पूर्ण ज्ञान प्रकट हुआ है ऐसे केवली भगवान। ये 3 अपेक्षा से ज्ञान की किया। बहुत सुंदर उत्तर दिया इन्होंने। ज्ञानी शब्द जो है वो मुख्यतया 3 तरीके से जो है शब्द प्रयोग होता है उनका। एक तो जो सामान्य ज्ञान है उसके अपेक्षा से, उस अपेक्षा से देखा जाए तो भव्य अभव्य निगोदिया से लगा के सिद्ध तक के सारे जीव उसमें गर्भित हो जाएंगे। दूसरा सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि की अपेक्षा से, सम्यक ज्ञान मिथ्या ज्ञान की अपेक्षा से चर्चा की जाती है। उसके अंतर्गत जो है पहले से लगा के तीसरे गुणस्थान तक जो है वो अज्ञानी है और चौथे गुणस्थान से लगा के ऊपर के सारे जीव जो है वो ज्ञानी है। और तीसरी अपेक्षा जो है वो ज्ञान की पूर्णता और अपूर्णता की अपेक्षा से है। तो पहले से लगा के 12वें गुणस्थान तक जो है वो छदमस्त होने के कारण से अज्ञानी है और 12वें गुणस्थान से ऊपर 13वें गुणस्थान से ऊपर के जितने जीव है वो सब पूर्ण ज्ञानी है, वो ज्ञानी है। इस तरीके से ये प्रश्न का उत्तर है। अगला प्रश्न जो है वो ये प्रश्न है कि ज्ञानी बनने की प्रक्रिया को बताया गया है। गुरुदेव श्री ने भी उसको बताया और भाई साहब ने भी काफी सुंदर तरीके से उसका विवेचन किया। तो उसकी वो प्रक्रिया क्या है उसको यहाँ पे बताना है। अनुभूति जैन। बोलिए। 4 बातें बताई थी। लक्ष्य छोड़कर, दूसरा निमित्त का लक्ष्य छोड़कर, तीसरा राग को छोड़कर, चौथा पर्याय का लक्ष्य छोड़कर द्रव्य का अवलंबन। ये ज्ञानी की प्रक्रिया बताई। बिल्कुल, बहुत सुंदर तरीके से आपने बताया इसका उत्तर। वास्तव में संयोग का लक्ष्य छोड़कर, निमित्त का भी लक्ष्य छोड़कर, राग को छोड़कर और पर्याय का लक्ष्य छोड़कर, ये काफी चर्चा हमारे इस गुरु मंथन वाणी शिविर में आ भी रही है कि वास्तव में पर्याय जो है वो लक्ष्य करने वाली है।
और किसका लक्ष्य करती है? तो त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक भगवान आत्मा का लक्ष्य करती है। इस प्रकार से पर्याय का लक्ष्य छोड़कर वास्तव में ज्ञानी हुआ जाता है। ये ज्ञानी बनने की प्रक्रिया है। इसके बाद में अगला प्रश्न है, अनेकांत की अपेक्षा विधि निषेध निर्बाध रूप से सिद्ध होता है। इसको घटित करके बताया था, वो कोई इसको घटित करके बता सकते हैं? अनेकांत की अपेक्षा विधि निषेध निर्बाध रूप से सिद्ध होता है। इसके लिए जो है एक दो उदाहरण देके घटित करके उसकी प्रक्रिया बताई थी। किस प्रकार से अनेकांत को घटित किया जाता है, कैसे करना चाहिए, गुरुदेव श्री ने बहुत सुंदर तरीके से इसका विवेचन किया है। सिद्धात्मा प्रभा जी। हाँ जी, अनम्यूट कीजिए सिद्धात्मा प्रभा जी अपने आप को। उसमें बताया था कि कार्य उपादान से होता है, निमित्त से नहीं होता है। मतलब उपादान में ही कार्य होता है और निमित्त से अनेकांत है। आवाज थोड़ी ब्रेक हो रही है आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, वापस बताएंगे नास्ति को हटाना है। जरा वापस बताएंगे सिद्धात्मा प्रभा जी, आपकी आवाज कट हो रही है। आ रही है आवाज? हाँ बोलिए। हेलो, आवाज आ रही? हाँ, उसमें अनेकांत को सिद्ध करने के लिए बताया था कि कार्य उपादान से होता है, कार्य उपादान से होता है, निमित्त से नहीं। बिल्कुल, बहुत सुंदर उत्तर है। देखिए अनेकांत का मतलब, हाँ आपका उत्तर सही है। अनेकांत का मतलब ये नहीं है कि कार्य व्यवहार से भी होता है, मतलब जो व्यवहार से भी धर्म होता है, निश्चय से भी धर्म होता है, या कार्य जो है वो निमित्त से भी होता है, उपादान से भी होता है। वास्तव में ऐसा अनेकांत नहीं है। अनेकांत का वास्तविक प्रयोजन ये है कि कार्य जो है वो उपादान से ही होता है और निमित्त से नहीं होता है। धर्म जो है वो निश्चय के अवलंबन से अर्थात शुद्ध नहीं के अवलंबन से ही होता है, व्यवहार के अवलंबन से या अन्य किसी से नहीं होता है। इस प्रकार का अनेकांत जो है वो यहाँ पे घटित किया और ये विधि निषेध की प्रक्रिया जो है यहाँ पे बताई गई। एक प्रश्न और यहाँ पे आया था, उद्दत शब्द का अर्थ बताया था, चार अर्थ बताए थे उद्दत शब्द का। कोई बता सकता है उद्दत शब्द का 4 अर्थ? कल्पना जैन। उद्धत शब्द के 4 अर्थ बताए, ऊंचा, अतिशय, अभिमानी और अहंकारी। ये 4 शब्द हाँ बिल्कुल सही उत्तर है आपका। उद्दत शब्द का अर्थ बताया था, ऊंचा किया हुआ, अतिशय, अभिमानी और अहंकारी। तो ये वास्तव में शुद्ध नय का क्या महात्म्य है, इसको भी यहाँ पे बताया था। गुरुदेव श्री के प्रवचन में भी काफी सुंदर चर्चा आई थी। इसको कोई बता सकता है शुद्ध नय का क्या महात्म्य है? शुद्ध नय जिसको प्रकट हुआ है उसका क्या लक्षण है, क्या चिन्ह है? निमिषा गांधी। आपका माइक अनम्यूट किया है। निमिषा गांधी, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हाँ जी, रोमेश जैन। रोमेश जी आप बताइए। जो वस्तु है उसके अवलंबन से होने वाला जो ज्ञान है वो शुद्ध नय कहलाता है। वो ज्ञान, उसी ज्ञान को उद्धत ज्ञान कहते हैं। और जो ये उद्धत ज्ञान है, ये उद्धत ज्ञान किसी से दबता नहीं है, चाहे वो छायोपसमिक ज्ञान हो चाहे केवल ज्ञान का ज्ञान हो। और जिसको एक बार ये उद्धत ज्ञान हो जाता है उसके लिए आश्रव बंध का जो बंधना होता है वो भी अल्प ही होता है। बहुत सुंदर उत्तर है आपका, काफी सटीक उत्तर दिया आपने। सिर्फ इसमें मैं एक चीज और जोड़ना चाहता हूँ
कि जो शुद्ध नय का महात्म्य है, गुरुदेव श्री ने उसमें एक बात उन्होंने बहुत मुख्य रूप से कही थी कि अतीन्द्रिय आनंद का नमूना अर्थात स्वाद आया है उसे, उसने अतीन्द्रिय आनंद का स्वाद लिया है, ये एक चीज उसमें जोड़ी गई। और उसके साथ में उसे बंद नहीं होता, तो बंद नहीं होता है, यहाँ पे कौन सा बंद नहीं होता, तो कहते हैं अनंत संसार, पूरे समय सार में जो अनंत संसार का बंद है उसे ही वास्तव में बंद गिना गया है। और ऐसा शुद्ध नय का जिसने आश्रय लिया है उसके वास्तव में बंद नहीं होता, ये शुद्ध नय का महात्म्य है। और एक अंतिम प्रश्न के साथ में जो है इस कार्यक्रम को मैं समाप्त करूंगा। समय सार को यहाँ पे बताया था, समय सार क्या है, 3 समय सार के अर्थ यहाँ पे बताए थे, वो आपको बताना है। ये अंतिम प्रश्न है। अक्षय जी औरंगाबाद से, बोलिए। आवाज आ रही है? हाँ जी। हाँ, समय मतलब मत, सिद्धांत, समय सार मतलब द्रव्य भाव, नो कर्म रहित शुद्ध आत्मा, और समय सार गाथा ग्रंथाधिराज समय सार। आपका उत्तर सही है। इसमें खाली सिर्फ एक थोड़ा सा करेक्शन करता हूँ। समय का मतलब पहला अर्थ किया था मत, मत मतलब जो अनेक मत चलते हैं ना, एकांत मत चलते हैं, और उन सबको खंडित करने वाला सारभूत जैन दर्शन जो है वो वास्तव में सब मतों का सार है। इस तरीके से एक अर्थ किया था, एक ग्रंथाधिराज समय सार, और तीसरा अर्थ था द्रव्य कर्म भाव कर्म नौ कर्म से रहित जो शुद्धात्मा है वो समय का सार है। इस तरीके से 3 अर्थ इसके यहाँ पे किए थे। इस तरीके से पूरा प्रश्नमंच जो है हमने यहाँ पे किया। अब मैं माइक जो है वापस से विराट जी को सौंपता हूँ, वो आगे की प्रक्रिया। धन्यवाद भाई जितेंद्र जी, आपने बहुत बढ़िया संचालन किया। और धन्यवाद शांति जी भाई साहब को, जयपुर से जुड़ करके इस 120 नंबर क्लास में उद्धत ज्ञान की चर्चा की, शुद्ध नय की बात की। चर्चा बहुत अभी बाकी है, कल चर्चा का शेष अंश होगा। और ध्यान रखें शाम को 6:50 पर आपका टाइम चेंज है, 6:50 पर आज हम सब भक्ति करेंगे और उसके बाद में होगा गुरुदेव श्री का व्याख्यान। अतः शाम को आप समय पर आए। और शाम को आज बहुत विशेष कार्यक्रम रखा गया है आपकी शंका समाधान का, और शंका हमें प्राप्त हो गई है आपके द्वारा। हम सब शंकाओं को विद्वान तक पहुंचा रहे हैं और आपको एक नया प्रमेय भी जानने को मिलेगा। अतः आप शाम को जरूर शामिल रहें इस कार्यक्रम में। जिनवाने की विनय कर रहे हैं कभी खड़े हो जाए अपने स्थानों पर, तो हम सब खड़े होकर के जिनवाने की विनय करेंगे। अनंत धर्मणस्तत्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः, अनेकांतमयी मूर्तिर् नित्यमेव प्रकाशिताम्। द्वारसांगमयी महाकल्याणकारी जिनवाणी माता की जय हो। महामंगलकारी जैन शासन की जय हो, जय हो, जय हो। जय जिनेन्द्र।